नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाना क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं बेन जॉनसन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज which of the following comedy of Ben Jonson was a satirical study of avarice on the heroic scale? So the options we have Volpone, The Silent Woman, Alchemist and none of these. So right answer जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए Volpone. Next question, which of the following is not correctly matched? तो इनमें से हमें बताना है कि जो वर्क है वो कब पब्लिश हुआ था, उसका जो करेक्ट पेयर है वो कौन सा है। ऑप्शंस वी हैव एवरी मैन इन हिज ह्यूमर was published in 1598, The Alchemist was published in 1610, Volpone was published in 1606 and Bartholomew Fair was published in 1604. So right answer यानी कि जो incorrectly matched है that is option D, Bartholomew Fair. And it was not published in 1604, it was published in 1614. Next question, which of the following is not true about Ben Jonson? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो फैक्ट है that is not true about Ben Jonson. Options we have, he popularized the comedy of humours. He is best known for his lyric and epigrammatic poetry. He is generally regarded as the second most important English dramatist after William Shakespeare. And option D is On My First Son was written in 1601. So जो true नहीं है इनमें से that is option D, On My First Son was written in 1601. ये जो work है On My First Son, a poem by Ben Jonson, was written in 1603 and was published in 1616. After the death of Jonson's first son, Benjamin, at the age of 7. Next question, who claimed that The Alchemist had one of the three most perfect plots in literature? तो Alchemist के बारे में, जो कि Ben Jonson का एक प्ले है, उसके बारे में ये जो कमेंट है ये किसने किया है? ऑप्शंस वी हैव जॉन ड्राइटन, सैमुअल जॉनसन, एस्ट्री कॉलरिज and Alexander Pope. So the right answer of this question is option C, S.T. Coleridge. Next question है, a classical influence on Ben Jonson's Volpone is. तो जो Ben Jonson की कॉमेडी है Volpone, इस पे क्लासिकल इन्फ्लुएंस जो है वो किस राइटर का माना जाता है? ऑप्शंस वी हैव जुवेनल, प्लॉटस, एरिस्टोफेन्स एंड टेरेंस. सो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो है ऑप्शन सी, एरिस्टोफेन्स. और आपको एक फैक्ट और बता दूं कि एरिस्टोफेन्स को फादर ऑफ कॉमेडी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बट दाउ देयर ऑन डिडस्ट ओनली ब्रीथ एंड सेंस इट बैक टू मी, since when it grows and smells, I swear, not of itself but thee. These are the concluding lines from. तो ये जो लाइन्स हैं हमें बताना है कि किस फेमस पोम की कंक्लूडिंग लाइन्स हैं. ऑप्शंस वी हैव, these all poems are written by Ben Jonson to Penhurst. Option B, Underwood, C, Song to Celia and D, On My First Son. सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉन्ग टू सिलिया. ये बहुत ही फेमस पोम है. इसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं वो भी आप देख लीजिए, बहुत छोटी सी पोम है. इसका पूरा टेक्स्ट भी आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैरेक्टर बोनेरियो अपीयर्स इन बेन जॉनसन्स प्ले. तो देखिए बेन जॉनसन ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, उनमें से बोनेरियो नाम का जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले में अपीयर होता है? ऑप्शंस वी हैव The Silent Woman, The Alchemist, Every Man in His Humour और Volpone. So right answer इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, Volpone. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plays by Ben Jonson ends with the performance of a puppet play in imitation of Marlowe's Hero and Leander? तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है that is asked in UGC NET एग्जाम और इंग्लिश लिटरेचर
से रिलेटेड जितने भी छोटे एग्जाम्स हैं उनमें ये रिपीट भी हो सकता है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय बेन जॉनसन एंड्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ पपेट प्ले in imitation of Christopher Marlowe's hero and Leander? So options we have Bartholomew Fair, Volpone, The Alchemist, none of these. So right answer जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, Bartholomew Fair. Next question. From what animal does the play Volpone take its name? तो Volpone का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। ऑप्शंस वी हैव डॉगी, फॉक्स, पैरासाइट और रेवन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉक्स। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके नाम का कुछ ना कुछ मतलब है, तो इस प्ले को थोड़ा डेप्थ में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर begins a new chapter in the history of English drama? तो ये कमेंट जो है वो बेन जॉनसन पर किसने किया है? ऑप्शंस वी हैव T.S. Eliot, George Sampson, A.C. Beardsley and A.C. Swinburne. So right answer of this question is option B, George Sampson. Next question of today's video. Which plays of Ben Jonson was left unfinished? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बेन जॉनसन का, इसमें पूछा गया है कि बेन जॉनसन का कौन सा वर्क जो है दैट वाज अनफिनिश्ड। ऑप्शंस वी हैव कैटिलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी, सेजॉनस हिज फॉल, द अरेंजमेंट एंड द सेल शेफर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय बेन जॉनसन शेक्सपियर प्लेड अ रोल ऑफ फादर नॉवेल्स? तो आप सब जानते होंगे कि शेक्सपियर और बेन जॉनसन कॉन्टेम्परेरी राइटर्स थे। तो शेक्सपियर ने बेन जॉनसन के कौन से प्ले में फादर नॉवेल्स का रोल प्ले किया था? ऑप्शंस वी हैव एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और द साइलेंट वुमेन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेन जॉनसन्स टिम्बर और डिस्कवरीज इज अ, तो आप सबको पता है कि बेन जॉनसन ने टिम्बर और डिस्कवरीज नाम से एक वर्क लिखा था। इसका लिटरेरी जॉनर हमें बताना है। ऑप्शंस वी हैव कॉमिक प्ले, ट्रेजिक ड्रामा, फिलोसॉफिकल ट्रीटीज और कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड रिफ्लेक्शंस। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड that the moving of laughter was not essential to comedy, whereas equity, truth, perspicuity and candor were? So ये जो statement है ये किसने दिया है ये हमें बताना है। ऑप्शन वी हैव जॉनसन, जॉनसन। ये जो ऊपर वाला है वो ऑप्शन ए है, ये बेन जॉनसन, और जो ऑप्शन बी है दैट इज सैमुअल जॉनसन। इन दोनों की स्पेलिंग में फ़र्क है थोड़ा सा। और सी जो है दैट इज पोप एंड डी स्विफ्ट। Right answer is A, Ben Jonson. Next question. Which of the following works is not written by Ben Jonson? तो इनमें से कौन सा वर्क जो है वो बेन जॉनसन ने नहीं लिखा है ये हमें बताना है। ऑप्शंस वी हैव प्लेजर रिकंसाइल टू वर्च्यू, द डेविल इज एन एस, मॉर्टिमर हिज फॉल एंड द मैड लवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मैड लवर। और साथ ही साथ ये फैक्ट भी आपको बताते चलें कि ये जो मैड लवर है ये एक जैकोबियन ट्रेजेडी है, जैकोबियन स्टेज प्ले है, एक ट्रेजिक कॉमेडी है जो कि जॉन फ्लेचर ने लिखी है और ये भी बेन जॉनसन के कॉन्टेम्परेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेन जॉनसन्स प्लेजर रिकंसाइल टू वर्च्यू इज अ, तो देखिए अभी हमने ऑप्शंस में ये वर्क देखा था, प्लेजर रिकंसाइल टू वर्च्यू। इस वर्क का हमें लिटरेरी जॉनर बताना है। ऑप्शंस वी हैव डोमेस्टिक ट्रेजेडी, मास्क, विलनिल और क्लोजेट ड्रामा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेन जॉनसन्स कॉमेडीज आर, तो इनमें से हमें बेन जॉनसन की कॉमेडी का जो ग्रुप है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस वी हैव वॉल्पोन, बार्थोलोम्यू फेयर और एंड द शूमेकर्स हॉलीडे। नेक्स्ट है वॉल्पोन, एल्केमिस्ट, एपिकॉइन, और उसके बाद सी ऑप्शन है वॉल्पोन द एल्केमिस्ट, द नाइट ऑफ बर्निंग पेसल, एंड नेक्स्ट है वॉल्पोन, एपिकॉइन,
और द शू मेकर्स हॉलीडे। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्पोन, द एल्केमिस्ट एंड एपिकॉइन, जिसका दूसरा नाम, एपिकॉइन का दूसरा नाम द साइलेंट वुमन भी है। नेक्स्ट है, इन द प्रोलोग ऑफ हिज प्ले वॉल्पोन, बेन जॉनसन डिक्लेयर्स हिज होप दैट द प्ले विल। तो देखिए, वॉल्पोन जो बेन जॉनसन का बहुत ही फेमस वर्क है, उसके प्रोलोग में बेन जॉनसन किस उम्मीद के बारे में सोच कर ये डिक्लेयर करते हैं कि प्ले जो है वो इस तरह का काम करेगा। ऑप्शंस वी हैव, मेक हिज ऑडियंस बोथ लाफ एंड क्राई, एंटरटेन एंड एजुकेट हिज ऑडियंस, make his audience forget their troubles, and insult his audience prejudice and stupidity. So right answer हो जाएगा option B, entertain and educate his audience. Next question, The Alchemist was played at which of the following theatres? तो Alchemist जो है उसको कौन सी theatre में play किया गया था? Options we have, the Globe, the Bankside Theatre, the Hope Theatre and the Queen's Rebels. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ग्लोब। नेक्स्ट है, हु सेड जॉनसन ब्रॉट क्रिटिकल लर्निंग इनटू वोग। फिर से देखिए स्टेटमेंट, जॉनसन ब्रॉट क्रिटिकल लर्निंग इनटू वोग। सो ऑप्शंस वी हैव, अलेक्जेंडर पॉप, जॉनसन, शेक्सपियर। यहाँ पर सैमुअल जॉनसन आना चाहिए था, जॉनसन में एच आना चाहिए था स्पेलिंग में, शेक्सपियर और नन। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर पोप। तो इस तरह के जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं, यू शुड रिमेंबर अबाउट दैम। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, उनको विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आने का काम जो है वो मैं रेगुलर कर रही हूँ, और होपफुली जल्दी ही इस काम के बाद हम नई सीरीज शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।